Good morning, children. Today's topic is indicators. We are going to learn about indicators. So, what do we mean by indicators? Indicators are those substances which indicates the nature of a substance, nature of a chemical of a given chemical or substance. And what do we mean by nature? Nature means whether it is acidic, basic और न्यूट्रल. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो दिया हुआ केमिकल है या दिया हुआ जो सब्सटेंस है, वेदर इट इज़ एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एज यू नो litmus. We have learnt about litmus earlier also, that litmus is of two colors. One is blue litmus, another is red litmus. And we all know the application of litmus paper, that when we add blue litmus in acid, then it turns the blue litmus into red. And similarly, if you add red litmus in a base, it will turn the red litmus into blue. So, turning the color of litmus from blue to red, if any chemical changes the litmus color from blue to red, this indicates that chemical is acidic in nature. Similarly, if any chemical turns red litmus paper from red to blue, that shows that the chemical which was poured on the red litmus paper was basic in nature. So, not only color, the substances which indicates the nature of the given substance, right? अब बात आती है कि आप किस तरह से उसका नेचर किस तरह से इंडिकेट कर सकता है वो. सो देर आर टू वेज बाय विच एनी सब्सटेंस कैन इंडिकेट whether the given substance is acidic or base. So the first thing is by changing color or by changing in odor. Odor means smell, as we know. So by changing color and by changing smell, we can get to know that if any substance is changing its color in a particular medium, this shows that there is acidic or basic nature, जैसे litmus ने किया. There are some chemicals which changes their odor in the acidic and basic medium. That also indicates the nature of the chemical, whether it is acidic or basic in nature. So, such chemicals are called acid-base indicators or simply indicators. I hope this much is clear to everyone. Now we'll see what are the types of indicators. So children, there are two types of indicators. Let me write about that. The first type of indicator is naturally occurring indicators. They are also called natural indicators. And the second is synthetic indicators. Natural occurring indicators and synthetic indicators. तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स
जो कि हमको मेनली प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम लैब में प्रिपेयर करते हैं. So, I'll be telling you some examples of natural occurring and synthetic indicators. So, first of all, I'll be telling you about natural occurring indicators. We are making a table. Here I am writing indicators name. यहाँ पे मैं लिखूँगी color of that indicator, color in न्यूट्रल मीडियम, मतलब वो न्यूट्रल मीडियम में क्या कलर का रहता है, जो भी जिस भी इंडिकेटर की हम बात करेंगे. व्हाट इज़ इट्स कलर इन एसिडिक मीडियम एंड व्हाट इज़ इट्स कलर इन बेसिक मीडियम. सो फर्स्ट इंडिकेटर दैट वी आर गोइंग टू सी इज टर्मरिक, हल्दी. ठीक है. वेन एवर देर इज़ टर्मरिक स्टेन ऑन योर क्लोथ, जब भी आपके कपड़ों पे टर्मरिक की स्टेन होती है, आप अगर उसको साबुन अप्लाई करोगे या उस पर डिटर्जेंट अप्लाई करोगे, देन इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड. ये आप अपनी मदद से भी पूछ सकते हैं या आप घर पे इसको अभी प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो. टेक अ क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ, और उस पर आप थोड़ा सा अपने जो घर में बनी हुई सब्ज़ी है या दाल है, आप उसको ड्रॉप करो, तो वो एक टर्मरिक का येलो कलर का स्टेन आ जाएगा. और उसको आप जब आप उस पर सोप अप्लाई करोगे या उस पर डिटर्जेंट डालोगे, तो आप देखोगे कि वो येलो कलर जो है रेड में टर्न हो गया. लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू दैट एनी सोपी सब्सटेंस, वेदर इट इज़ डिटर्जेंट, शैम्पू, सोप, एनीथिंग, इज़ बेसिक इन नेचर. So this shows that turmeric when added in basic medium, it turns from yellow to red. Otherwise it remains yellow in neutral medium. इसका कलर येलो है न्यूट्रल मीडियम में. एसिडिक मीडियम में भी ये येलो रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये रेड कलर का हो जाता है. इट टर्न्स रेड इन दी बेसिक मीडियम. तो ये एक आपका नेचुरल इंडिकेटर हो गया. सेकेंड इंडिकेटर हम देखेंगे अनियन. अनियन का जो रियल कलर होता है दैट इज़ कॉल्ड बफ कलर. बफ कलर मीन्स अ काइंड ऑफ फ्लैश कलर. और when it is added in acidic medium it turns pink, and when it is added in basic medium there is appearance of light green color. Okay, so जब अपने ओरिजिनल कलर न्यूट्रल मीडियम में ओरिजिनल कलर में रहता है, व्हेन एसिडिक मीडियम में आप डालते हो, आपने देखा होगा अनियन को अगर हम विनेगर में डालते हैं तो विनेगर इज़ एसिडिक इन नेचर, सो उसका कलर थोड़ा सा डार्क पिंकिश हो जाता है. और जब हम उसको सोप में डिप करेंगे तो अनियन में लाइट ग्रीन कलर आ जाता है. थर्ड इज़ पर्पल कैबेज. यू माइट हैव हर्ड ऑफ cabbage, and there is certain cabbage of purple color. तो इसका जो न्यूट्रल में कलर होता है वो पर्पल होता है, लेकिन अगर उसको हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे सो इट टर्न्स फ्रॉम पर्पल टू रेड, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो इट टर्न्स फ्रॉम पर्पल टू ग्रीन. तो अगर आपका पर्पल कैबेज का जूस ग्रीन में टर्न हो जाए किसी केमिकल में ऐड करने पर, सो दिस शोज़ दैट द केमिकल इज़ बेसिक इन नेचर. एंड इफ़ द पर्पल कलर ऑफ द कैबेज टर्न्स इनटू रेड बाय एडिंग इनटू सर्टेन केमिकल, दिस शोज़ दैट द केमिकल इज़ red, the chemical is acidic in nature if it turns red. Fourth is litmus. Just now I have explained about litmus. So litmus is, as I said, of two color, red litmus and blue litmus. litmus का solution भी आता है, इसके drops आती हैं red और blue, और litmus papers भी आते हैं. So red color litmus, if you add in acidic medium, there is no change, so red will remain red, but in the basic medium red will turn blue.
And the blue litmus, when added in acidic medium, it turns blue to red, sorry. And when it is added in basic medium, it remains blue. So these are some examples of natural indicators. These are natural indicators. Continuing this, I'll be telling you about the synthetic indicators. Let's see indicators which are synthetic in nature. Synthetic means which are prepared in the lab, which are man-made. So synthetic indicators में हमारे पास में दो examples हैं. The first one is phenolphthalein. Phenolphthalein, देखो लंबा चौड़ा नाम है, स्पेलिंग इसकी. Phenolphthalein is actually a colorless solution. ये colorless solution है. एसिडिक मीडियम में इट रिमेन्स कलरलेस, जैसा न्यूट्रल में रहता है वैसे ही एसिडिक में रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में इट टर्न्स पिंक. तो अगर फिनोप्थिलीन की एक ड्रॉप आप किसी मीडियम में ऐड करेंगे और अगर वो मीडियम का कलर पिंक हो जाता है, देन यू से दैट सोल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर. और अगर फिनोप्थिलीन ऐड करने पे देयर इज़ नो चेंज इन द कलर, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर. Second synthetic indicator is methyl orange. ये येलो कलर का है न्यूट्रल मीडियम में. इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड इन द एसिडिक मीडियम एंड इट टर्न्स येलो ऑरेंजिश या येलो ऑरेंज कलर का थोड़ा सा हो जाता है बेसिक मीडियम. तो इसमें एक प्रोमिनेंट चेंज मिलता है आपको एसिडिक में येलो टू रेड का. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स. यू कैन हैव अ लुक अगेन ऑन इट. ध्यान से देखेंगे. टर्मरिक, अनियन, पर्पल कैबेज, लिटमस. दीज आर 4 नेचुरल इंडिकेटर्स एंड देर आर 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऑल्सो. I hope it is clear to everyone. अब आप ये देखो कि आपने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं बच्चों, जितने भी मैंने आप लोगों को बताए, दीज ऑल आर एसिड बेस इंडिकेटर. ये आपको इंडिकेट करेंगे कि गिवन सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक. बट व्हाट अबाउट न्यूट्रल? कोई न्यूट्रल को नहीं बताता है. इसमें आप देखोगे कि इनमें कोई भी न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं है. जो भी न्यूट्रल में कलर आ रहा है ये इनका ओरिजिनल कलर है. जैसे टर्मरिक का ओरिजिनल कलर येलो है, अनियन का ओरिजिनल कलर बफ है, पर्पल का ओरिजिनल कलर, पर्पल कैबेज का ओरिजिनल कलर पर्पल है. सो न्यूट्रल, इन न्यूट्रल मीडियम यू आर नॉट गेटिंग एनी चेंज इन द कलर. सो हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूट्रल मीडियम? प्लस these indicators, these set of indicators are not going to tell you that whether the acids which are present are strong acids or weak acids, and the bases which are given are strong bases or weak bases. तो इन indicators के साथ में एक drawback ये है. There are 2 drawbacks majorly. The first thing is they are not telling you anything, no idea about neutral कंडीशन. ये न्यूट्रल कंडीशन के बारे में कोई हमको आइडिया नहीं देते. जैसे ये हैं वैसे ही रहते हैं न्यूट्रल मीडियम में. एंड सेकेंड थिंग इज़ एसिड्स और बेस, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में ये नहीं बताते. स्ट्रेंथ का मतलब है वेदर द एसिड एंड बेसेस आर स्ट्रॉन्ग और वीक. सो फॉर दिस वी नीड टू मॉडिफाई इट. हमें एक थोड़ा सा बेटर फॉर्म ऑफ इंडिकेटर चाहिए जो कि हमें ये दोनों जो ड्रॉबैक्स हैं इसमें, दैट शुड बी कवर्ड, राइट. So for this there is another type of indicator जो कि आपको इन चीज़ों को कवर करेगा. that is called universal indicator. So let's see what is universal indicator. Universal
इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसा नाम है उससे ही आपको आइडिया लगता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मीन्स which will tell you about everything, like whether the given chemical to you is acidic or basic or even neutral. And also not only acidic and basic, it will also tell you whether the acid given to you is a strong acid or a weak acid. मतलब आपको मैंने बताया there are two types of acid, one which is edible or consumable, another acid which is non edible. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड हमारे लिए एडिबल है, कौन सा नहीं है? या कहने का मतलब है विच एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग, विच एसिड इज़ वीक, सिमिलरली विच बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, विच बेस इज़ वीक। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मैनी कॉमन इंडिकेटर्स। जितने भी आपने कॉमन इंडिकेटर्स पढ़े हैं इन सब का एक मिक्सचर है। दैट शोज चेंज ओवर change of color over certain pH values। अब आप सोचेंगे pH वैल्यू क्या होता है? तो pH इज़ बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन। आई लेट यू मोर अबाउट इट लेटर ऑन, बट बेसिकली ये किसी भी एसिड और बेस की अलग अलग pH वैल्यू होती है। तो अलग अलग pH वैल्यू पे इसके अलग अलग कलर्स शो होते हैं। सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ। इसके दो एडवांटेजेस होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इट इंडिकेट्स न्यूट्रल मीडियम, and second thing is it indicates strength of acid and base। strength भी बताएंगे acids और base, right? so I hope एक बार आप इसे रीड करेंगे और आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ pH ही है जो आपको आई थिंक न्यू वर्ड है आपके लिए, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। सो देयर इज़ अ टॉपिक अबाउट pH लेटर इन द चैप्टर, तो अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। देयर इज़ अ स्केल, pH एक स्केल है, pH वैल्यू का एक स्केल होता है बच्चों 0 to 14 का, ठीक है? देयर इज़ अ स्केल ऑफ 0 to 14। ये मैं आपको pH स्केल बता रही हूँ। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ज़ीरो टू 4 का एक 14 का एक स्केल है। इसकी मिड वैल्यू है 7, ठीक है? तो 7 से जितना कम होता है ये एसिडिक वैल्यू होती है। एसिड्स को मतलब ये pH अगर 7 से कम है तो ये एसिडिक कंडीशन है, और 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक कंडीशन है, एंड एग्जैक्टली अगर 7 है तो ये न्यूट्रल कंडीशन है। ये न्यूट्रल कंडीशन है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई 7 से कम है, ज़्यादा है? ये वाला एरिया आपका रेड कलर का होता है, ये वाला आपका एरिया ब्लू कलर का होता है, ये वाला आपका येलो ग्रीन कलर का होता है, ये 7 वाला। तो आप किसी भी केमिकल को लेके अगर pH का एक पेपर होता है, जैसे लिटमस का एक पेपर होता है, तो अगर आप pH पेपर पे किसी केमिकल की आप एक ड्रॉप डालोगे तो अगर उसमें पिंकिश रेडिश कलर आता है तो वो एसिडिक मीडियम बता रहा है, मतलब उसका pH लेस देन 7 है। अगर उसमें ब्लू डार्क ब्लू वॉयलेट कलर आता है तो वो बेसिक मीडियम बता रहा है, और अगर उसका कलर येलो ग्रीन हो रहा है तो वो आपका न्यूट्रल मीडियम बता रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि हमें क्या कलर मिल रहा है।
आप जितना ज़ीरो की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको पिंक, और पिंक से आप डार्क रेड पे आते जाओगे। तो आपको जितना डार्कर रेड मिलता जाएगा मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ज़ीरो पे अगर आप आ गए तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मिल जाता है। और यहाँ पे आप लाइट ब्लू ग्रीन से होते हुए वॉयलेट पे आ जाओगे, लास्ट में आपका वॉयलेट कलर आ जाएगा। तो अगर आप जितना डार्कर ब्लू पे जाओगे तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो जाता है। तो अगर आपका पीएच, आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ पीएच कलर्स के। देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ pH colors, like if the pH is of 3, तो 3 means we are having less than 7 means acidic में है, and somewhere here in the center, तो इसका कलर आपको जो मिलता है रेड मिलता है। इट्स नॉट डार्क रेड बट रेडिश। इफ़ इट इज़ 5 मीन्स नियर टू 7, तो थोड़ा सा लेस एसिडिक मीन्स ऑरेंज पिंकिश ऑरेंज ऐसा कुछ कलर मिलेगा आपको। इफ़ यू हैव 7 एग्जैक्टली इज़ न्यूट्रल मीडियम, सो दैट इज़ येलो ग्रीन। एंड इफ़ इट इज़ 8 देन इट इज़ ग्रीन, बिकॉज 8 आपका बेसिक साइड में आ गया। इट इज़ 10 देन इट इज़ ब्लू, एंड इफ़ इट इज़ 14 then it is dark blue or violet। तो ये कलर में आपको चेंज जब मिलता है तो यू विल गेट टू नो दैट वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। और आपको ये भी पता चलेगा जितना आप डार्क रेड में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू नो दैट विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। जितना आप डार्कर ब्लू में जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू नो दैट विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस। So I hope universal indicator is clear to everyone. And a little small topic, let me write it here only. आपको मैंने बताया था कि इंडिकेटर्स दो चेंजेस के थ्रू अपने इंडिकेट करते हैं वेदर द कंपाउंड इज गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एक था चेंज इन कलर और दूसरा था चेंज इन स्मेल। तो जो चेंज इन स्मेल वाले इंडिकेटर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हमारी ब्रेन में स्मेलिंग की जो सेंस होती है उसे ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। तो स्मेलिंग सेंस को ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। और क्योंकि ये इंडिकेटर्स दे चेंज देयर स्मेल व्हेन एडेड टू एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, इसलिए इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। सो दीज आर द इंडिकेटर्स दैट चेंजेस देयर ओडर in acidic and basic medium। तो ये order change करके आपको बता देंगे कि whether the compound or the chemical given to you is acidic or basic in nature। They change their order। There are examples like vanilla essence, केक में डलता है बच्चों ये वेनिला एसेंस हो गया आपका। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो आई होप टुडेज टॉपिक ऑफ इंडिकेटर इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर चेंज। कलर चेंज में आपने दो टाइप पढ़े हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, विच आई हैव शोन यू इन द टेबल एंड इट इज़ देयर इन द नोट्स ऑल्सो। एंड नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने जो एक ड्रॉबैक पढ़ा कि वो न्यूट्रल मीडियम को और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट एक्सप्लेन यूजिंग द नॉर्मल इंडिकेटर्स। सो वी हैव सीन दैट देयर आर द मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर विच विल गिव both the disadvantages which are there in that normal indicators, so that are overcome in universal indicators। and about olfactory indicator, ये मैंने आपको बताया था which changes their odor in acidic and basic medium, और examples are vanilla essence and clove oil। So I hope today's topic is clear to everyone।